कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी बताई थी कल? Sir, कंजर्वेटिव that फोर्स, does not depend on path. फिर वही, फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, work done by the work force. done by the force does not depend on path. So यही नॉर्मली टेस्ट जब चेक करते हो उसमें भी 50% स्टूडेंट्स ने यही गलती लिखी होती है कि फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ. सो इट्स ऑलवेज द वर्क अबाउट विच वी आर टॉकिंग. इसीलिए वर्क बाय एनर्जी के चैप्टर में है ये. सो यू कैन राइट conservative force. A force whose non-zero work in moving a particle, a force whose non-zero work in moving a particle from position 1 to position 2 is independent of the path followed is independent of the path followed is defined as conservative force. Is independent of the path followed is defined as conservative force. और सेकेंड डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, और if work done in moving a particle by a force around closed loop is zero, then force is said to be a conservative force. That is if, अगर मैं 2 पॉइंट्स लेता हूं, अगर हम P1 से P2 थ्रू एनी पाथ आते हैं, इन वर्क डन इज W12, और P2 से P1 किसी और पाथ से आते हैं, इन वर्क डन इज W21. सो अगर इन दोनों का सम जीरो है, then we say that force is conservative. For example, as shown in figure, कोई भी दो arbitrary path बना लो. For example, as shown in figure, if particle moves from P1 to P2 and work done is W12, and if the particle moves from P2 to P1, work done is W21, then for conservative force, the sum of these two work done should be zero. Or you can say that work done to move from 1 to 2 is opposite of work done to move from 2 to 1. Examples of conservative force are gravitational force, electrostatic force,
magnetic force, etc. Electromagnetic force, etc. इसके नीचे नोट में कुछ पॉइंट्स लिख लो विच आर इम्पोर्टेंट। सिर्फ कंपटीशन के लिए, स्कूल में ये सब नहीं पूछेंगे। A conservative force must be a function of only position. Conservative force must only be a function of position and should not change with velocity or time. And should not change with velocity or time. Second point is all uniform and constant forces are conservative forces. कभी भी आपको दिया हो कोई कांस्टेंट फोर्स है जो वेरी नहीं करती, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, कुछ भी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो कांस्टेंट फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव. All uniform and constant forces are conservative. All uniform and constant forces are conservative. अब मैंने दो टर्म्स यूज की, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट. अब एक से काम नहीं चलता. यूनिफॉर्म फोर्स कौन सी होती है, कांस्टेंट कौन सी होती है? अगर मैं ये टर्म यूज कर रहा हूं कि यूनिफॉर्म फोर्स एंड कांस्टेंट फोर्स, तो इन दोनों में कुछ फर्क होता है? जब भी यूनिफॉर्म टर्म फिजिक्स में यूज होती है, इसका मतलब होता है देयर इज नो वेरिएशन विद पोजीशन. कांस्टेंट का मतलब होता है देयर इज नो वेरिएशन विद टाइम. So when I say a uniform force, it means it has same magnitude and direction at all points in space. When I say constant force, it means it has same magnitude and direction at all instants of time. So uniform is always for variation with position. Constant means variation with time. लिख लो इसको बेशक. The term uniform means magnitude and direction. The term uniform means magnitude and direction of force remains. Magnitude and direction of force remains same everywhere in space. Remains same everywhere in space. Whereas constant force means magnitude and direction is same at all instants of time. Magnitude and direction is same at all instants of time. At all instants of time. Third is all central forces are conservative in nature. All central forces are conservative in nature. और इसके आगे भी मतलब लिख लो. A central force at any points. A central force at any point acts towards or away from that fixed point. A central force at any point always acts towards or away from a fixed point. And its magnitude depends on distance from that fixed point. And its magnitude depends on distance from that fixed point. जैसे gravitational force है तो it's a central force.
It always acts towards the center of Earth, and its magnitude depends on distance from the center of Earth. All forces, next point, all forces whose magnitude or direction, all forces whose magnitude or direction depends on, all forces whose magnitude or direction depends on distance from the fixed point, all forces, sorry, whose magnitude and direction depends on velocity are non-conservative. All forces whose magnitude and direction depends on velocity are non-conservative. फ्रिक्शन की डायरेक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, फ्रिक्शन की, जैसे बॉडी स्लाइड कर रही है टुवर्ड्स राइट तो फ्रिक्शन एक्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इसका मतलब फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, तो वो नॉन कंजर्वेटिव है. फॉर एग्जांपल, डायरेक्शन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, direction of sliding friction depends on direction of relative velocity, therefore it is a non-conservative force. अब इसमें एक कंसेप्ट आता है, ध्यान से समझना. पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको हम तभी डिफाइन कर सकते हैं अगर फोर्स जो है दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. अगर बॉडी पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही हो तो हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन क्यों नहीं कर सकते? अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन क्यों नहीं कर सकते? कल हमने एमजीएच की डेरिवेशन कैसे की थी? जब हमने एमजीएच की डेरिवेशन की थी उसको कैसे किया था? हमने अर्थ को माना था रेफरेंस, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी ली थी 0. अर्थ से ऊपर लेके आने में जो भी वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. अब मैंने ग्राउंड से हाइट h तक लेके आना है तो मैंने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखी थी. अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती तो ग्राउंड से हाइट h तक लाने का वर्क डन अलग अलग आ जाता, अलग अलग पाथ होता. तो बिकॉज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड. तो आप ग्राउंड से हाइट h तक बॉडी को लाते हो, हर कोई अलग पोटेंशियल एनर्जी निकालता बिकॉज पोटेंशियल वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड. तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी तभी डिफाइन हो सकती है जब वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे. कि आपने जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था 10th में कि वर्क डन टू मूव अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो आपने उसमें पाथ नहीं बताया था कौन सा, बिकॉज वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता. सो कभी भी पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं हो सकते अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करती हैं बॉडी पे. सो यू कैन राइट दिस पॉइंट आल्सो, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड. Potential energy can be defined only if conservative forces acts on the body, only if conservative forces acts on the body, because if non-conservative force acts, then work done depends on because if non-conservative force acts, then work done depends on path followed and work done to move from reference point to the new point
Work done to move from reference point to the new point. Will be different for different paths. अब मेरे को एक सिंपल क्वेश्चन बताना से मेरे पास एक पेन है, मैंने इसकी हाइट बढ़ाई, नीचे से ऊपर लेके आया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी या कम हुई? बिकॉज ये पेन को छोड़ूंगा तो नीचे गिरेगा, तो मैं ऊपर लेके आ रहा हूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी Decrease. बढ़ेगी। बढ़ेगी। ग्रेविटी ने वर्क पॉजिटिव किया या नेगेटिव किया जब मैं इसे ऊपर ला रहा था? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। Negative. पॉजिटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करती है? Downwards. डाउनवर्ड्स। और डिस्प्लेसमेंट किधर है? Upwards. डाउनवर्ड। तो नीचे से ऊपर लेके आया तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स नहीं है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स है, ग्रेविटी डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, तो वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो उस पर नेगेटिव वर्क हो रहा होता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है दैट इज माइनस डेल्टा यू। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर कभी भी आपको आएगा, और पूरी फिजिक्स में, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव है तो U1 ज्यादा है या U2 ज्यादा है? अगर ये पॉजिटिव है तो U2. इन दोनों में U1 ज्यादा होगा तभी U1 माइनस U2 पॉजिटिव आएगा। तो U1 इनिशियल एनर्जी थी, फाइनल थी? Final energy. इनिशियल। हमेशा इनिशियल एनर्जी को U1 लिखते हैं, फाइनल को U2 लिखते हैं, तभी तो चेंज को लिखा फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा U इज फाइनल माइनस इनिशियल। मैं कह रहा हूं कंजर्वेटिव फोर्स का अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और अगर ये नेगेटिव है तो Final potential energy ज्यादा होगी. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। अब यही एग्जांपल देखो, पेन को नीचे से ऊपर लेके आया, वर्क डन पॉजिटिव था या नेगेटिव था? नेगेटिव। ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव, ये वर्क डन नेगेटिव है, तो क्या ज्यादा होना चाहिए दोनों में से? U2। U2. यही कंसेप्ट है कि ऊपर लाया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, ग्रेविटी ने नेगेटिव वर्क किया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल से ज्यादा होगी। दो चीजें होंगी। अब ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अगर आएगा वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे मैंने इस पेन को उठाया तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूं दैट इज अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा दैट इज डेल्टा यू, दैट इज U2 माइनस U1। मैंने इस पेन को उठाया तो मैंने जो फोर्स लगाई उसने पॉजिटिव वर्क किया या नेगेटिव? मैं फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा था अगर मैं इसको उठा रहा हूं तो? Upwards direction. अपवर्ड्स, और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड्स है, तो मैंने वर्क पॉजिटिव किया। मैंने वर्क पॉजिटिव किया तो दोनों में से क्या ज्यादा होना चाहिए? U2. U2। U2। और यही कंसेप्ट है, फाइनल एनर्जी इनिशियल से ज्यादा है अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट पॉजिटिव वर्क किया है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस माइनस डेल्टा यू, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस डेल्टा यू। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स किसी बॉडी पे पॉजिटिव वर्क करेगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। मैंने इस पेन को छोड़ दिया तो ग्रेविटी इस पे पॉजिटिव वर्क कर रही है, नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये पॉजिटिव कब आएगा? जब U1 बड़ा होगा U2 से. U1 बड़ा है छोटा है इसमें? अगर मैंने ऊपर से छोड़ा तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, यहाँ पे या ग्राउंड पे? इनिशियल कौन सी है? ऊपर। ऊपर। तो U1 ग्रेटर देन U2,
कि ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क कर रही है और पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। ग्रेविटी नेगेटिव वर्क करती तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। सो इसको लिख लो पॉइंट को। Whenever work is done by conservative force, whenever positive work is done by conservative force, whenever positive work is done by conservative force, potential energy, whenever positive work is done by conservative force, potential energy decreases. There is work done by conservative forces, work done by conservative forces minus delta U, or work done by conservative forces U initial minus U final. मतलब I1 और 2 की जगह ऐसे लिख लो कि आपको हमेशा याद हो जाए। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल। नेक्स्ट, सिमिलरली वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस डेल्टा U, similarly work done against conservative forces delta U, there is U final minus U initial, there is U final minus U initial. नेक्स्ट पैराग्राफ में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की भी डेफिनेशन लिख लो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, force is said to be non-conservative if, force is said to be non-conservative if force is said to be non-conservative if work done by the force, if work done by the force to move the particle between 2 points, work done by conservative force to move the particle between 2 points, work done by conservative force to move the particle between 2 points depends on path followed and not on the initial and final position only, and not on the initial and final position only. Or second definition, a force is a non-conservative force if work done in moving around closed loop is zero. अब इंपॉर्टेंस पता चली इसकी। हमने वर्क की जो शुरू में फर्स्ट डे डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें लिखा था वर्क डन इज एफ डॉट एस, तो उसका मतलब ये था कि अगर एस जीरो है तो वर्क डन भी जीरो ही आएगा। अगर मैं जैसे डायग्राम बोर्ड पे बना हुआ है अगर मैं P1 से चल के वापस P1 पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0. तो वर्क डन नॉन जीरो भी हो सकता है अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगी। हमेशा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वर्क डन जीरो नहीं होगा, वो सिर्फ तभी ट्रू होता है फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, because work done in moving around a closed loop is zero only if force is conservative,
अगर फ्रिक्शन को मैं कंसीडर करूंगा तो P1 से गया P2 तक, P2 से वापस P1 तक आया तो वर्क डन 0 नहीं आएगा. You will have some work done there, although displacement comes out to be 0. तो वो जो फॉर्मूला है कि S 0 है तो वर्क डन 0 होगा, that is for conservative forces only. Next you write law of conservation of mechanical energy. Law of conservation of mechanical energy. Law of conservation of mechanical energy. It states that if resistive forces are not acting, if resistive forces are not acting on a body, if resistive forces are not acting on a body, then total mechanical energy of the system is conserved. Total mechanical energy of the system is conserved. ये आपने 9th में भी शायद प्रूव किया था, तब आपने वर्टिकली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए किया था. Total mechanical energy of the body is conserved. Like अगर मेरे पास ऐसे है, मैं फ्री फॉल से भी कर सकता था, पर हम थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं. फ्री फॉल की जगह इंक्लाइन प्लेन पे कर देते हैं. से मेरे पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन थीटा. इसको मैं मान रहा हूं कि इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड है, मूवेबल नहीं है. ये फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है. एक बॉडी है जो मैंने यहां से रिलीज की रेस्ट से, पॉइंट ए से. हमने बेसिकली शो करना है 2 पॉइंट्स और लेके, एक बी और एक सबसे नीचे वाला पॉइंट सी. अगर इन तीनों पॉइंट्स पे एनर्जी सेम आती है तो वी से दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड. मैकेनिकल एनर्जी मींस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. इसकी हाइट मैं ले लेता हूं कुछ से, मान लो h. ये एंगल थीटा है और इंक्लाइन प्लेन की टोटल लेंथ s है. ये हाइट h1, इसको हम रेफरेंस लेवल मान रहे हैं. h इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये h1 है तो दिस विल बी कैपिटल H माइनस h1. ये डिस्टेंस s1 a से b तक, और ये b से c का डिस्टेंस sbc. ठीक, अब मेरे को अगर शो करना है कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम सेम है, इस पॉइंट पे कौन सी एनर्जी है? ए पे जब छोड़ा था, अभी रिलीज किया, यू तो 0 है, तो यहाँ पे एनर्जी इज ओनली पोटेंशियल. और कितनी? mgh. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी? सर mgh ही रहेगी. mgh1. यस. h1 है ना ये हाइट, तो ये mgh1. और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0. ग्राउंड पे आ गए तो 0. यहाँ पे 0, ग्राउंड पे आ गए तो. यहाँ पे पोटेंशियल पता है, तो मेरे को बेसिकली इस पॉइंट पे काइनेटिक निकालनी है. तो मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए. इधर पोटेंशियल 0 है, इधर भी काइनेटिक निकालनी है, तो इधर भी वेलोसिटी चाहिए vc. पहले समझ लो, फिर इसको मैं लिखा दूंगा प्रॉपर कैसे लिखना है, बिकॉज स्कूल में आता है क्वेश्चन. अगर मैं a से b का डिस्टेंस लेता हूं, बॉडी a से b मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0. इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन कितनी होती है? g sin थीटा, बिकॉज ऐसे डायग्राम बनता है ना, ये mg sin थीटा, ये mg cos थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस हो जाते हैं. तो ये फोर्स है तो एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास. तो इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन इज ऑलवेज g sin थीटा.
एक्सेलरेशन इज जी साइन थीटा। ए से बी तक डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है? एस से ऐसे बी हमारे पास ये फॉर्मूला है, बी पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यू तो जीरो है, 2 इंटू जी साइन थीटा इंटू एस से बी। इस ट्राइंगल को देखो, ए बी एंड से बी वन, साइन थीटा कितना है इस ट्राइंगल में? ए बी बी वन, साइन थीटा किसके इक्वल होगा? एस से बी डिवाइडेड बाय एच माइनस एच वन। एच माइनस एच वन डिवाइडेड बाई एस से बी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होगा ना। तो एस से बी इंटू साइन थीटा कितना आ गया इसकी वैल्यू? ठीक है ये, ठीक है ये स्टेप। यस सर। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बी पे? हाफ एम इंटू वी बी स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट एम जी एच माइनस एच वन। पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे कितनी थी यहाँ पे? तो इन दोनों का सम कितना आ गया? ए पे भी यही एनर्जी थी, एम जी एच। अगर हम ए से सी तक देखें, ए से सी तक, ए पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है। ए से सी तक डिस्टेंस है एस से सी। तो सी पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यू जीरो है, अब पूरा ट्रायंगल देखो, ए सी एंड सी वन, इस पूरे ट्रायंगल में साइन थीटा कितना है? एच अपॉन एस से सी। एस से सी इंटू साइन थीटा कितना आ गया? एच। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी सी पे? और पोटेंशियल एनर्जी एच सी जीरो। तो टोटल एनर्जी यहाँ भी एम जी एच। हमने यही प्रूव करना था, इन तीनों पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी सेम है। सो दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो करस्पॉन्डिंगली पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। बॉडी को मैं नीचे से ऊपर फेंकता तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। सो डायग्राम बना लो, फिर लिखते हैं इसको। सिर्फ डायग्राम बनाना, ऊपर थोड़ी सी स्टोरी लिखनी पड़ेगी पहले। So you can write, to prove conservation of mechanical energy. To prove conservation of mechanical energy, we can assume a fixed smooth inclined plane.
We can assume a fixed smooth inclined plane की friction नहीं लेनी, नहीं तो energy loss होगा. Fixed smooth inclined plane of inclination theta and height h. Of inclination theta and height h. If क्या लाइन लिखी थी हमने अभी, सेंटेंस क्या लिखा अभी इससे पहले? So inclined plane of inclination theta. Inclined plane of inclination theta and height h. If body is released from the top, if body is released from the top, and slides down the inclined plane, and slides down the inclined plane, inclination is theta and acceleration is g sine theta. Inclination is theta and acceleration is g sine theta. The potential energy of the body gets converted into potential energy decreases and corresponding kinetic energy increases. For point A, अब लिखो for point A. For point A, the body is initially at rest. The body is initially at rest. Therefore, initial kinetic energy is zero. Initial kinetic energy is zero. Initial kinetic energy is zero. That is and potential energy at A is mgh. Total energy at A is mgh. Then you say that as body slides from A to B, फिर नोट कर लो.
इसको फर्स्ट मार्क कर लो. You can write this down. फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं. सो हमें पेपर में ना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वाले में आया था सर्कुलर बॉडी में. सर्कुलर बॉडी मतलब तो वो बॉडी सर्कल में उन्होंने कहा था सर्कल में अगर बॉडी होगी तो पॉइंट बी सेंटर में ग्राउंड स्टेट में और अबव स्टेट में कैसे होगी कंजर्वेशन मैकेनिकल वो एनर्जी की. अभी आगे आएगा. मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल दिया था फिर आपको. आपका स्कूल कौन सा है? ये पीछे. आपको फिर एक वो भी आया था ना 6 mg प्रूफ करना. यस वो भी आया था. हाँ, वो मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल में आगे आएगा. कैसा हुआ पेपर आपका? तो अच्छा हो गया था. मेरे को बस एक क्वेश्चन नहीं आता था, न्यूमेरिकल था एक, वो वाला समझ नहीं आया था. वेलोसिटी वो प्रोजेक्टाइल का था. हम्म. बस काइनेमैटिक्स का तो आपको आसान आया था. वो थर्ड सेकेंड और 7 सेकेंड और फिर 4 सेकेंड आफ्टर 8 सेकेंड कुछ ऐसे क्वेश्चन था जिसका 191 आंसर आ रहा था. यस सर. नोट हो जाए तो बताना. हो गया नोट? सो लास्ट लाइन पढ़िए. डन सर. So you can write then from equation 1, 2 and 3. From we can equation 1, 2 and 3 we can conclude that total mechanical energy at any point remains same.
remain same. इसके नीचे नोट लिखो एक, बिकॉज आगे जाके कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें इंक्लाइन प्लेन भी फिक्स नहीं होगा रोटेशन में. If inclined plane is not fixed, then as the block slides down, inclined plane move backwards. As the block slides down, inclined plane move backwards. And the decrease in potential energy of block will be equal to increase in kinetic energy of block as well as inclined plane. कि काइनेटिक एनर्जी से ब्लॉक की नहीं बढ़ेगी, इंक्लाइन प्लेन की भी बढ़ेगी. इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक एज वेल एज इंक्लाइन प्लेन. एक इसके नीचे पॉइंट और लिख लो, इट्स इम्पॉर्टेंट, अगेन कॉम्पिटिटिव में यूज होगा आपका. If force acting on a body is conservative, if force acting on the body is conservative, force acting on the body is conservative, then potential energy and force are related as. Then potential energy and force are related as F is equals to minus du by dr. F is equals to minus du by dr. F is equals to minus du by dr. This implies that if potential energy is maximum or minimum, or constant, then du by dr is equals to 0. Then du by dr is equals to 0. Then du by dr is equals to 0.
सो नेक्स्ट टाइम करते हैं कल इसके आगे.